ایگزامپل 4.12 ڈسکس کرتے ہیں جو کہ انڈائریکٹ آرمسٹرانگ ایف ایم ماڈولیٹر ہے. اس کو یہ ایف ایم سگنل جنریٹ کرتا ہے. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک نیرو بینڈ ایف ایم کا بلاک ہے, پھر ایک ملٹی پلائی ہے جو نان لینئر ڈسٹورشن کریٹ کرتا ہے. اس میں اس کا آرڈر کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو دو ملٹی پلائرس ہیں یہ اس پوزیشن میں لگے ہوتے ہیں. ان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں, لیکن ان کو جب علیحدہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو فریکوینسی ڈبلرز یا ٹرپلرز ہیں یا کوادروپلرز ہیں یہ ہمارے پاس کم ہو جاتے ہیں جو کہ ملٹی پلائرز ہیں. تو اس کے بعد یہ فریکوینسی مکسر ہے, بینڈ پاس فلٹر ہے, اور پھر وہ ملٹی پلائر, اور فائنل ہماری جو ایف ایم کی جو ایف ایم سگنل ہے میگا ہرٹز کے اندر وہ ہمیں ریسیو ہو جاتا ہے, اور جو فریکوینسی ڈیویشن ہے فائنل وہ یہ دی ہوئی ہے. اگر ڈیٹا آپ دیکھیں تو اس میں گیون ہے کہ جو اس ایف ایم جو جنریٹر ہے اس کا جو سگنل ہے وتھ کیریئر فریکوینسی آف 97.3 میگا ہرٹز, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اور اس کی جو فریکوینسی ڈیویشن ڈیلٹا ایف ہے وہ 10.24 ہے, وہ کلو ہرٹز ہے. تو یہ ڈیلٹا ایف 4 کی بات ہو رہی ہے, 10.24 کلو ہرٹز ہے. اس قسم کا سوال ہوگا تو اس میں آپ نے یہ چیزیں فل کرنی ہے. پھر اس میں دیا ہوا کہ نیرو بینڈ ایف ایم جو ہے اس کی جو کیریئر فریکوینسی ہے وہ 20 کلو ہرٹز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایف سی 1 کی بات ہو رہی ہے, یہ لو فریکوینسی آبویسلی ہوگی 20 کلو ہرٹز, اور اس کی جو فریکوینسی ڈیویشن ہے وہ 5 ہرٹز ہے, جو کہ یہ ڈیلٹا ایف 1 کے بارے میں بتایا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے اونلی فریکوینسی ڈبلرز کین بی یوزڈ ایز اے ملٹی پلائی. اس کا مطلب ہے کہ M1 اور M2 جو ہیں, M1 اور جو M1 اور M2 ہیں اس کا مطلب ہے کہ دے شوڈ بی دا پاور آف 2 ریزڈ ٹو پاور n. M1 کے لیے اسی طرح 2 ریزڈ ٹو پاور n2 M2 کے لیے. تو یہاں پہ جو ملٹی پلائر ہے یہ بھی 2 کی پاور ہونا چاہیے, اور یہاں پہ جو ملٹی پلائر ہے یہ بھی 2 کی پاور ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو ڈیٹا ہمیں معلوم ہو گئے, یہ دو معلوم ہو گئے. اب ہم نے آگے پروسیڈ کرنا ہے. جو یہ لیفٹ سائڈ پہ اگزامپل ہے یہ بتاتی ہے کہ اس میں کون سے اسٹیج پہ کیا کیا چیز تبدیل ہوگی. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلاک کی جو ملٹی پلائی کی ان پٹ پہ جو فریکوینسی ہے وہ 200K ہے, اور جو آؤٹ پٹ ہے وہ 12.8 میگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فریکوینسی ہے یہ 64 سے ملٹی پلائی ہو کے یعنی ملٹی پلائر جو وہ ہے بلاک ہے وہ ایکچولی کیریئر فریکوینسی کو بھی تبدیل کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو فریکوینسی ڈیویشن ہے اس کو بھی تبدیل کرتا ہے اسی فیکٹر سے جو کہ یہ اس بلاک کے اندر دیے ہوئے 64 ٹائمز ہے یہ. اس کو 64 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کو 1.6 کلو ہرٹز ملے گا. اس کو 200 کو بلاک کے ان پٹ پہ جو ہے اس کو 64 سے ملٹیپلائی کریں گے جو بلاک کے اندر ہے, تو آپ کو جو اس کی آؤٹ پٹ کیریئر فریکوینسی ہے FC3 مل جائے گی, FC2 سوری ہے. سملرلی فریکوینسی کنورٹر کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اس طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی, وہ یہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ یہ جو فریکوینسی کنورٹر بلاک ہے اس کی ان پٹ پہ فریکوینسی کیا ہے, ایک فریکوینسی FC 12.8 میگا ہرٹز ہے اور دوسری جو ہے وہ 10.9 میگا ہرٹز ہے. تو ان دونوں کا سم اور ڈفرینس جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ جو دیا ہوا ہے وہ ڈفرینس لیا ہوا ہے بجائے اس کے سم لیا ہے. تو 12.8 کا اور 10.9 کا ڈفرینس 1.9 بنتا ہے. اگر سم ہوتا تو یہ فریکوینسی کافی زیادہ ہوتی, یہ 22 پوائنٹ سمتھنگ میگا ہرٹز ہوتی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فریکوینسی ڈیویشن ہے فریکوینسی کنورٹر جو ہے وہ اس کو چینج نہیں کرتا, وہ 1.6 ہے اور یہ بھی 1.6 ہے اس کے آؤٹ پٹ پہ. اس کا مطلب ہے کہ فریکوینسی شفٹر یا کنورٹر یا مکسر جو ہے یہ اس کے جو ان پٹ پہ جو فریکوینسیز ہوتی ہیں ان کا سم یا ڈفرینس دیتا ہے اور فریکوینسی ڈیویشن کو تبدیل نہیں کرتا. تو لہٰذا اگر ہمیں یہ دو فریکوینسیز معلوم ہو جائے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فریکوینسی ہے سم یا ڈفرینس ہے, اور یہ دونوں سیم ہے. اب مجھے جب یہ اس بلاک کے ان پٹ پہ یہ فریکوینسی پتہ چل گئی, اس کو 48 سے ملٹیپلائی کروں گا یہ ملے گا, اور اس کی فریکوینسی ڈیویشن چونکہ دونوں تبدیل ہوتی ہیں اسے تو فریکوینسی ڈیویشن بھی تبدیل ہو جائے گی 48 ٹائمس. 1.6 کی ہے ملٹیپلائی بائی 48 تو 76.8
किलो हर्ट्स हो जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिवीजन एफएम के अंदर 75 किलो हर्ट्स है, तो ये उसके नज़दीक है। तो ये चीज़ें हमें मालूम करनी होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑलरेडी फिगर आपको दी होगी। तो ये नैरो बैंड एफएम की जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो दी हुई है, जो कि 20 की है, डाटा गिवन है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन यहाँ पे दिखा है 25 हर्ट्ज, जो कि इसकी नैरो बैंड एफएम की है वो भी दी हुई है। और इस ब्लॉक की यानी फाइनल जो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो कि मेगा हर्ट्ज में होती है एफएम की वो दी हुई है, और जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है करस्पॉन्डिंग इसकी वो दी हुई है। अब हमने देखना है कि हम इस डाटा को कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं दिखा दूँ कि जो बैंड पास फिल्टर यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ, तो यहाँ पे मिक्सर के बाद बैंड पास फिल्टर जो है वो जो कि फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर का हिस्सा है, तो वो इसके साथ बैंड पास फिल्टर भी। ये जो सवाल है वो ये कहता है कि ये मल्टीप्लायर के इनपुट पे यानी नैरो बैंड एफएम की जो फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी डिवीजन दी हुई है, और फाइनल जो है वो फ्रिक्वेंसी और फाइनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन दी हुई है। अब आपने बीच का डाटा मालूम करना है, जिसका मतलब है कि हम नहीं मालूम करना है कि ये आउटपुट पे ये फ्रिक्वेंसी और फ्रिक्वेंसी डेविएशन क्या है। लोकल ऑसिलेटर का हमें पता है कि वो क्या करता है, मिक्सर की इनपुट में एक फ्रिक्वेंसी क्या है FC2 और दूसरी क्या है FLO। तो ये लोकल ऑसिलेटर और इस फ्रिक्वेंसी का सम और डिफरेंस, ये 3-4 कम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि अगर ये बड़ा हो तो इसका फिर यानी ये बड़ा हो तो FLO माइनस FC2 होना चाहिए, अगर ये बड़ा है तो FC2 माइनस FLO होना चाहिए, इनका फिर सम भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मिक्सर की जो आउटपुट है वो सम और डिफरेंस इन दोनों का, और दूसरी बात ये दी है कि इसकी तो रेंज दी है, तो जाहिर बात है इसमें से हमने फ्रिक्वेंसी चूज करनी है, तो लिहाजा उसके लिए हमें M1 मालूम करना होगा और M2 मालूम करना होगा। यहाँ पे जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो ये है कि FC1 को अगर मैं M1 से मल्टीप्लाई करूँ, जो कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फार्मूला, जो चीज़ मुझे मालूम है कि मल्टीप्लाई क्या करता है, कैरियर फ्रिक्वेंसी जो कि इनपुट पे FC1 है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ M1 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा FC2। क्योंकि मल्टीप्लायर है तो फ्रिक्वेंसी डेविएशन भी चेंज होगी, लिहाजा डेल्टा एफ जो 2 है वो बराबर होगा M1 इंटू डेल्टा F1, जिसका यहाँ से आप देख सकते हैं कि FC1 तो गिवन है। अगर हमें M1 मालूम होगा तो FC2 मालूम हो जाएगा, जो कि ये, अगर M1 मालूम हो तो ये मालूम हो जाएगा, तो लिहाजा इसका मतलब है कि यहाँ पे आने के लिए हम M1 पे डिपेंड कर रहे हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे तो फर्दर एक वेरिएबल है जो कि 400 से 500 किलो हर्ट्ज के दरमियान है, FLO में एक रेंज सेलेक्ट करनी है हमें उसमें से। तो ये अननोन है FC2, यहाँ पे आप देख सकते हैं FC2 अननोन है, बल्कि मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल देता हूँ। FC1 है वो 20 की है, और दूसरी बात ये थी कि फ्रिक्वेंसी डबलर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि M1 जो है वो क्या हो, 2 raised to power n1, कोई इस तरह 2 की पावर हो n1, इसी तरह M2 है वो भी 2 की पावर हो n2, और इस केस में जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन की जो मल्टीप्लायर होता है यानी M1 इंटू M2 जो कि M होगा, वो हमें मिलता है जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन जो हमें फाइनल दी हुई है, जो कि डेल्टा F4 है डिवाइडेड बाय डेल्टा F1, तो इससे हमें मिलेगा 10.24 K डिवाइड बाय 5। तो ये हमें M यहाँ से मिल जाएगा। अगर मैं इसको मालूम करूँ, मैं कैलकुलेटर से मालूम करता हूँ यहाँ से 10.240 हो जाएगा, 10,240 हो जाएगा। के से अगर आप मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 5 करें तो 2048 बनता है। M जो हमारे पास आता है वो है 2048। जब इसने कहा है कि ये 2 की पावर होना चाहिए, तो आई थिंक ये 2 की पावर
11 जो है वो 2 की पावर 11 जो है वो 2048 बनता है। तो डिबलर से मुराद ये है कि जो m है ये 2 की पावर होना चाहिए, और चूँकि इसमें हमारे पास m1 to m2 है तो इसका मतलब ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 11। इसका मतलब है कि जो n1 और n2 है इट मस्ट बी 11। तो एक हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई और ये m1 और m2 आ। तो अब हमने ये देख लिया कि मैं इसी एक्सप्रेशन को मालूम कर सकता हूँ कि 2 की पावर में लिख सकता हूँ। FC1 मुझे मालूम है ये 20 की है, और m1 जो है वो 2 रेज़ टू पावर n1 है इज इक्वल टू FC2। इसी तरीके से डेल्टा इसमें ये भी अच्छा, यहाँ से जो राइट साइड है इधर से m2 भी मुझे चाहिए, तो क्योंकि m1 और m2 रिलेटेड है समहाउ, तो इसलिए मुझे यहीं से इस ब्लॉक से और इस यानी मल्टीप्लाई के इनपुट और आउटपुट के बारे में मुझे पता है। इसका मतलब ये है कि अगर FC3 जो है ये वाला, इसको मैं m2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा FC4, और इसी की मल्टीप्लाई के इनपुट पे जो फ्रिक्वेंसी डेविएशन है इसको मल्टीप्लाई करूँगा इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, तो मुझे मिल जाएगा 10.24। तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। पहले मैं इसको तरतीब से लिख देता हूँ कि जो FC2 है वो मेरा अननोन है और n1 भी अननोन है। तो इस वक्त मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई जो m1 से आ रही है। इसी तरह FC3 इंटू m1 सॉरी m2 इज इक्वल टू FC4। तो FC4 एक्चुअली दिया हुआ है, FC4 97.3 मेगाहर्ट्ज़ है, और FC3 इंटू 2 रेज़ टू पावर n2 इज इक्वल टू FC4 हो जाता है जी 97.3 मेगाहर्ट्ज़। तो ये दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आती है कि अब मेरे पास दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन्स हैं, n1 अननोन है और FC2 अननोन है, n2 और FC3। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये FC2 और FC3 मालूम हो जाए, FC2 और FC3 मालूम हो जाए, FC2 ये है और FC3 ये है, तो ये मेरे दो अननोन में ज़ीरो हो जाएंगे, और अगर इनमें साथ साथ n1 भी मालूम हो जाए तो मुझे ये भी मालूम हो जाएगा और ये भी मालूम हो जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम है वो लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी डिसाइड करना है। तो यहाँ तक ये स्टेप है। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। जो लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है, जो यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है वो मुझे पता है कि वो इसका और इस लोकल ऑसिलेटर का सम है या डिफरेंस है। तो जो पॉसिबल फ्रिक्वेंसी है वो ये बनती है कि FC2 में FLO ऐड करूँ, FC2 में FLO ऐड करूँ, या हो सकता है कि FC2 बड़ा हो तो फिर मैं लिखूँगी इनका सम ले लूँ, FC2 प्लस तो ऑलरेडी हो गया, डिफरेंस लूँगा माइनस FLO, और इस तरह भी हो सकता है कि ये FLO माइनस FC2। तो ये चार कम्बिनेशन बनते हैं जिनमें से FLO में FC2 ऐड करें या इसको स्वैप करें तो वो एक ही है, तो इसलिए ये तीन हमारे पास केसेस बनते हैं, यानी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस हैं मिक्सर के आउटपुट पे वो ये तीन। तो इन तीनों को हमने टेस्ट करना होगा। ज़ाहिर बात है इसके अंदर इसी टेस्ट से हमें ये लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी भी मालूम होगी करनी पड़ेगी, और M1 और M2 भी मालूम करना पड़ेगा।